Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I've taken from slot one of this year paper, and the set says five countries engage in trade war in trade with each other. Each country levies import tariff on other countries. The import tariff levied by country X on country Y is equal to gets calculated by multiplying the corresponding tariff percentage with the total import of country X from country Y. The radar chart below depicts the different import tariff percentage charged by each of the five countries on the other. For example, the US, US, the blue line in the chart charged 20, 30, 40, 50, 20, 20, 40, 30, and 30% import tariff percentage on import from France, India, Japan, US, Japan, and UK respectively. The bar chart depicts the import tariff levied by each country from on other country. For example, US charge import tariff of 3 billion US dollar on UK. Okay. Assume that import from one country to another country is equal to the export from the later to the former. The trade surplus of a country X with country Y is defined as a trade surplus is equal to export from country X to country Y. Import to country X to country Y. A negative trade surplus is called as a trade deficit. और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. Question number one पूछा हुआ है how much is Japan's export to India worth? Which among the following is the highest? What is the trade surplus? Question number four बोला among the France and UK who has a trade surplus with US. ठीक है. कैलकुलेटिव डीआई का सेट जिसके अंदर अपने को जो डेटा है वो दो अलग अलग फॉर्म पे दिया हुआ है. पहला फॉर्म दिया हुआ है एक रडार चार्ट के फॉर्म पे, दूसरा दिया हुआ है बार ग्राफ के फॉर्म पे. कैलकुलेटिव डीआई में क्या होता है कि अपने को जो डेटा है उसको उठाना होता है, उसको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व करना होता है. उसमें बहुत लॉजिकल सोचने का नहीं होता है. बट बिफोर यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली पैसेज इज सेइंग. अगर आपने वो नहीं करा है तो मतलब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा स्ट्रगल करो इस चीज पे. ठीक है, चलो पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं. द इम्पोर्ट टैरिफ लेविड बाय कंट्री एक्स ऑन कंट्री वाई इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टैरिफ परसेंटेज विद द टोटल इम्पोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई. ठीक है, किसी भी कंट्री ने कितना टैरिफ इंपोर्ट टैरिफ कितना लेवी करा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द परसेंटेज वाला पार्ट ऑन द टोटल इम्पोर्ट दे हैव मेड. तो मान लो कंट्री और कंट्री भी है, उसने 100 रुपए का ट्रेड करा, इंपोर्ट करा और वो 30% लगा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपीज़ होगी. ऐसा मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ. The radar chart below depicts the difference, a different import tariff percentage charged by each of these country on the other country. For example, US, the blue in the chart, 20, 30, 40, 30, 30 import tariff percentage on France, India, Japan and UK. ठीक है. देखो यहाँ पे यूएस क्या ब्लू कलर का, तो यूएस ने क्या करा हुआ है? फ्रांस पे कितना लगाया था? 20%. इंडिया पे कितना लगाया है? 40%. जापान पे कितना लगाया है? 30%. यूके पे कितना लगाया है? 30%. एग्जैक्टली वही ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है. ठीक. That the bar chart depicts the import tariff levied by each country on the other country. For example, US charge import tariff of 3 billion US dollar on UK. अच्छा, यूएस डॉलर जो लगा है, जैसे इसने क्या करा होगा यूएस डॉलर ऑफ यूके, तो यूएसडी और यूके में कितना है? 20% है. ठीक है, 20% का यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है? यहाँ पे दे रखी है 3 बिलियन. यानी कि इनका जो टोटल इम्पोर्ट रहा होगा, जो यूएस ने यूके को इम्पोर्ट किया होगा, वो कितना होना चाहिए था? एक्स अमाउंट होना चाहिए था. 20% ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे व्हिच इज़ 3. तो यानी कि टोटल कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था ऐसा. ठीक है. तो मुद्दे की बात ये है कि देखो यहाँ पे इम्पोर्ट दिया हुआ है परसेंटेज के फॉर्म पे और उसी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे बार चार्ट के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को ये मिल गया था कि 20% है और यहाँ पे यूएस ने कितना करा है? टोटल 3 करा. तो 20% ऑफ समथिंग सम वैल्यू व्हिच इज़ टोटल इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू 3. तो वहाँ से टोटल इम्पोर्ट निकल जाएगा ये. ठीक है. टोटल इम्पोर्ट यूएस और यूके का निकल जाएगा तो टोटल एक्सपोर्ट भी निकल जाएगा यूके और यूएस का, बिकॉज़ दोनों ही सेम होने वाला है. तो मतलब अगर यूएस ने $15 का मतलब $15 मिलियन का अगर इम्पोर्ट करा है तो यूके ने $15 मिलियन का एक्सपोर्ट करा होगा ऐसा. ठीक है. अगर किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो हायर साइड पे एज़ कंपेयर टू इम्पोर्ट तो वो ट्रेड सरप्लस पे उस कंट्री के साथ. अगर उस कंट्री का किसी कंट्री का ट्रेड जो है मतलब एक्सपोर्ट वाला ट्रेड इज़ लोअर साइड एज़ कंपेयर टू द इम्पोर्ट वाला ट्रेड तो वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट में. ऐसा यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है अपने को. ठीक है. सो मैंने क्या करा 5 मिनट इन्वेस्ट कर दिए पैसेज को समझने में. अब क्वेश्चन पे चलता हूँ, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो सकता है. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच इज़ जापान्स एक्सपोर्ट टू इंडिया वर्थ? जापान ने इंडिया को जो एक्सपोर्ट करा है वो कितना करा है? जापान का इंडिया का एक्सपोर्ट. यार एक्सपोर्ट के बारे में तो चर्चा ही नहीं हुई ना.
लेकिन मेरे को ये पता है कि जापान से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो एग्ज़ैक्टली वही है जो इंडिया ने जापान से इम्पोर्ट करा था, ठीक? भाई हमने उनको भेजा, वो वही पार्ट है ना जो उनको हमसे रिसीव हुआ। तो जापान ने जो एक्सपोर्ट करा इंडिया को वो वही पार्ट है जो इंडिया ने इम्पोर्ट करा होगा जापान से। अब इंडिया ने कितना इम्पोर्ट करा अगर वो निकाल दें तो अपने को ये भी मिल जाएगा और वो कैसे निकल सकता है ईज़ी केवल है दोनों को यूजिंग दीज़ 2 गिवन डेटा। तो यहाँ पे क्या है इंडिया कौन है? ग्रीन है। इंडिया का कितना है? इंडिया ने जापान को कितना करा था 50% टैरिफ लगाया था। 50% 0.5 ऑफ टोटल इम्पोर्ट व्हिच इज़ नथिंग बट ये देखो यहाँ से निकाला है ना, इसको थोड़ा सही से तुम्हें हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को जापान का एक्सपोर्ट निकालना था तो अभी मैंने बताया कि मैं क्या करूँगा क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तो मैं इंडिया का इम्पोर्ट निकाल लूँगा। इंडिया का इम्पोर्ट कौन-सा है? ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो इंडिया ने जापान को कितना इम्पोर्ट करा है? 50% करा, यहाँ से दिख रहा है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 50%, ठीक है? 0.5 ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे टोटल इम्पोर्ट निकल जाएगी व्हिच इज़ अगेन अ टोटल एक्सपोर्ट आल्सो। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल सकती है, इधर। यहाँ पे कहाँ पे मिल सकती है? जापान ने कितना अरे सॉरी इंडिया ने कितना इम्पोर्ट करा है, तो इंडिया ने कितना इम्पोर्ट करा देखो यहाँ पे इम्पोर्ट टैरिफ दिया हुआ ना, इंडिया ने यानी कि ये इंडिया वाला पार्ट और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा जापान वाला पार्ट यानी कि येलो कलर वाला कितना है? 3 से इधर ऊपर बीच में यानी कि कितना है? 3.5 यानी कि ये कितना होना चाहिए? 3.5 देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ठीक। तो थोड़ा ना मतलब जो ऊपर के स्टेटमेंट है उससे एक बार तुम अगर समझ लेगे ना तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कितना है 3.5 अगर ये 3.5 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अरे हाफ ऑफ सम वैल्यू 3.5 तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एकदम आसानी से निकालने वाला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने थोड़ा मेहनत करके समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 की वजह से मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे निकलने वाली है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी वैसे ही निकालने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट, ठीक है। कौन-सा हाईएस्ट है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इम्पोर्ट बाय यूएस फ्रॉम चाइना। यूएस ने कितना इम्पोर्ट करा है? सॉरी इम्पोर्ट फ्रॉम बाय यूएस फ्रॉम फ्रांस। यूएस ने कितना इम्पोर्ट करा है? फ्रांस से। यूएस यानी कि ब्लू वाला। फ्रांस यानी कि फ्रांस किधर है? यहाँ पे येलो कितना है? 10, 20, 30 तो यानी कि इन्होंने करा है 30%, ठीक है। और यहाँ पे यूएस है। फ्रांस कितना है? 6 है, तो यानी कि यहाँ पे 6 है। ठीक है? फिर से देखो दिखा देता हूँ। पूछा था इम्पोर्ट बाय यूएस फ्रॉम फ्रांस तो यूएस कौन-सा था? ब्लू लाइन था। ब्लू यानी कि फ्रांस अरे सॉरी 20% है, ठीक है? 20% है। अब ये वाला पार्ट ना 20% है और ये पार्ट यहाँ से उठाया मैंने। तो 20% ऑफ दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू 6 तो यानी कि 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम 30। ऐसे ही अपन बी-सी-डी भी निकाल सकते हैं। बी में क्या पूछा हुआ है? एक्सपोर्ट बाय फ्रांस टू जापान। तो एक्सपोर्ट तो अपने को नहीं पता, अपन इम्पोर्ट निकाल देंगे। इम्पोर्ट बाय जापान एक्सपोर्ट बाय फ्रांस टू जापान तो मतलब इम्पोर्ट जापान वाला देख लेंगे। तो जापान यानी कि येलो और कहाँ पे देखना है? फ्रांस पे देखना है। फ्रांस पे येलो कितना है? 10, 20, 30 है। तो यानी कि इधर कितना होना चाहिए? 30 ठीक है। अच्छा, अपने को फिर से मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या देखा था? येलो वाला पार्ट यानी जापान देखा था। तो जापान का क्या देखना था? फ्रांस का पार्ट। फ्रांस कितना है? 3 है। तो यानी कि ये कितना आ गया? 3 तो ये कितना बन जाएगा? 10 ठीक है, बिकॉज़ 30% इज़ बेसिकली 10/3 नीचे 3/10 तो 3 इधर और 10 उधर चला जाएगा तो उसकी वजह से वो बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज़ अभी तक हाईएस्ट में ए तो अपने को ज़्यादा दिख ही रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी एक्सपोर्ट बाय जापान टू यूके अगेन उल्टा देख लेते हैं, यूके कौन है? ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसको देखना है किसके साथ? जापान वाले पे, जापान वाले पे यानी कि यहाँ पे, तो व्हिच इज़ नथिंग बट 40 तो यानी कि कितना आ गया? 40 ठीक। अच्छा, फिर से देख लेता हूँ एक्सपोर्ट बाय जापान टू यूके तो मैंने उल्टा देख लिया, यूके का जापान पे 40 था, यूके का जापान पे यूके का जापान कितना है? 6 है, तो यानी कि 6/0.4 0.4 इज़ नथिंग बट 2/5 यानी कि 2/5 तो 2/5 का मतलब इधर 2 आ जाएगा और इधर 5 यानी कि 15 है ना? ये आ गया 15 तो ये भी ऑप्शन अभी फिलहाल तो एलिमिनेट हो गया। ठीक, ऐसे ही अपन डी भी चेक कर लेते हैं, इम्पोर्ट बाय फ्रांस फ्रॉम इंडिया, फ्रांस यानी कि फ्रांस क्या है? रेड है। रेड यानी कि इंडिया पे कितना अगेन 40 है, ये भी कितना है 0.4 और फ्रांस का फ्रांस यहाँ पे इंडिया यानी कि यहाँ पे ग्रीन है, यानी कितना हो गया? 6.5
तो कितना आ गया 6.5 इंटू 5/2। यार कितना ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 पॉइंट, ऐसा नहीं, 5 5 25 कैरी 2, 32.5/2 विच इज 16.25 जैसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगेन ये तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्लियरली मिला है बिकॉज़ काफ़ी गैप आ चुका है, ठीक है। तो क्या करना था, प्योरली कैलकुलेशन पे अपना ये पूरा क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, व्हाट इज़ द ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विथ यूके, ठीक है। तो इंडिया विथ यूके में या तो इंडिया का इम्पोर्ट निकाल दे और यूके का इम्पोर्ट निकाल दे तो अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इंडिया का इम्पोर्ट निकालते हैं। इंडिया ने इम्पोर्ट कितना किया होगा? इंडिया ने यानी कि इंडिया है ग्रीन वाला लाइन, यूके पे, यूके यानी कि यहाँ पे, यूके पे यानी कितना है 20% है, ठीक है। यानी कि इंडिया और यूके कितना है यहाँ पे 5 है, 5 यानी कि ये कितना बन गया 25, ठीक है। तो इंडिया ने इम्पोर्ट कितना करा है? इंडिया ने इम्पोर्ट करा है 25, ठीक। ऐसे ही अपन यूके का इम्पोर्ट निकाल दें। यूके का इम्पोर्ट कितना होना चाहिए? यूके बोले तो यूके इज़ ये वाला लाइन, यानी कि ये इंडिया पे कहाँ पे है? 10, 20, 30 पे है, यानी कि 0.3। तो यूके का इंडिया कितना है? ये कितना है? ऐसा 3 के आसपास ना? अ, एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। यूके का इम्पोर्ट मेरा इंडिया के लिए था, यूके का था ये वाला लाइन व्हिच इज़ 10, 20, 30, ये मैंने सही लिख दिया था। और मेरे को देखना था यूके का इधर भी देखना था। यूके का इधर कितना था? अ, ये वाला पार्ट व्हिच इज़ 3, ठीक है, 3 आ गया, सही है, सही भी रीड कर रहा था। तो ये कितना बन गया? 3/10, 10/3 मिल गया यानी कि 10। तो कितना डिफरेंस कितना आ गया? 15 का आ गया, ठीक है। लेकिन अपने को डेफिनिशन क्या बोली थी? डेफिनिशन बोली थी कि क्या होना चाहिए और पूछा किसके कॉन्टेक्स्ट में? व्हाट इज़ द ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का क्या हो रहा है? अगर ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, तो ये एक्सपोर्ट है, तो इंडिया क्या कर रही है? ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है? नहीं, इंडिया कम एक्सपोर्ट कर रही है ना। तो इंडिया का यार 1 मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस डेफिसिट ऑफ इंडिया विथ यूके, और डेफिनिशन क्या बोला हुआ है? ट्रेड सरप्लस क्या होगा? एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू कंट्री वाई। तो एक्सपोर्ट कितना होने वाला है? कंट्री एक्स टू कंट्री वाई। ये अगर इम्पोर्ट है, तो ये उल्टा एक्सपोर्ट होने वाला है, और ये अगर इम्पोर्ट है, तो ये उल्टा एक्सपोर्ट होने वाला है। तो यानी कि अगर मैं उल्टा लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा -15। -15 का मतलब क्या होना चाहिए था? ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ये वाला पार्ट दोबारा बता देता हूँ। ये मैंने इम्पोर्ट निकाला ना, ये अगर इंडिया का इम्पोर्ट है, इंडिया ने अगर इम्पोर्ट करा है इतना, ठीक है। इंडिया ने इम्पोर्ट करा है तो मतलब ये यूके ने एक्सपोर्ट करा होगा। तो यानी कि ये यूके का एक्सपोर्ट है कितना? 25। और इंडिया का एक्सपोर्ट कितना आ गया? व्हिच इज़ दिस पार्ट 15। तो यहाँ नहीं, सॉरी 10। तो यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या चल रहा है? डेफिसिट चल रहा है व्हिच इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगेन ये थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत थी ना, यहाँ पे ये सिली मिस्टेक नहीं कर सकते थे बिकॉज़ ऑप्शन काफ़ी क्लोज़ दिए हुए हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फ्रांस एंड यूके हू हैव अ ट्रेड सरप्लस विद यूएस, ठीक है। फ्रांस और यूके के कंपैरिज़न में किसके पास ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं यूएस और यूके का, जगह बना लेते हैं इसके लिए ना। तो अपने को क्या पूछा हुआ है? फ्रांस और यूके का निकालना है इन कंपैरिज़न टू यूएस। तो यूएस के लिए पहले फ्रांस का निकाल दें एक तरफ, और यूके का निकाल दें एक तरफ। तो फ्रांस फ्रांस का ये आ गया, ये वाला रेड वाला पार्ट, या इसने कितना यूएस पे वो करा है, ठीक है। रेड वाला यूएस यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 30%। तो ये आ गया कितना 0.3। ऐसे ही यूके, यूके यानी कि ये डार्क ब्लू कलर वाला, इसने कितना करा यूएस पे 0.2, 0.2 करा है, ठीक है। 0.2 मतलब अ, यूके यूके ने यूएस यूएस यानी कि ये वाला पार्ट विच इज़ 3.5, ढाई। तो ये आ गया कितना? ढाई। तो ये 1/5 हो जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा कितना? 12.5, ठीक। और फ्रांस का कितना आ गया था? फ्रांस फ्रांस का यूएस कितना है? 5.5, 5.5, 5.5 का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 55/3।
ऐसा 55/3। ठीक, 55/3 कितना होता है? 18.33 टाइम्स ऐसा। ठीक। अच्छा, इसका फटाफट से अपन काउंटर भी निकाल दें कि मतलब फ्रांस का यूएस और इधर यूके का यूएस। ठीक है। तो यूएस यानी कि कौन-सा कलर हो गया? ब्लू कलर। ब्लू कलर यानी कि ब्लू कलर का फ्रांस में कहाँ पे है? 10 और 20। यहाँ पे ले लेते हैं अपन 20। और ब्लू कलर कहाँ पे है? यूके पे 10, 20 और 30 यानी कि यहाँ पे कितना है? 0.3 पे है। ठीक है। अच्छा, यूके का और यूएस का यूके क्या है? यूके कितना है? 3। 3 का मतलब हो गया 10। ठीक है, 30% 10/3 ये तो हो गया। और फ्रांस का कितना है? 6। 6 मतलब यहाँ पे आ गया 30। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अपना ट्रेड अपने को क्या पूछा हुआ है? ट्रेड सरप्लस पूछा हुआ है। तो ट्रेड सरप्लस किसके साथ दिख रहा है? फ्रांस के साथ दिख रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर, ओनली फ्रांस। क्योंकि यहाँ पे हमने इम्पोर्ट से ही ऐसा निकाल दिया। अभी दिख रहा है कि यूएस और फ्रांस में इम्पोर्ट फ्रांस ने 18.33 था और उधर उल्टा था। तो एक्सपोर्ट वाइज़ में अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यूएस ने कहाँ पे ट्रेड सरप्लस है? फ्रांस के साथ ट्रेड सरप्लस है। ऐसा अपने को यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज़ यूएस ने 30 का करा है और -18.33 व्हेयरएज़ उल्टे में देखो यहाँ पे दिख रहा है साफ-साफ कि यहाँ पे तो माइनस का आ रहा है। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है। ठीक है? आई वुड रेट दिस ओवरऑल एज़ अ मॉडरेट क्वेश्चन मतलब पेपर वाले फेज़ में यार इतना ज़्यादा सोच पाना टफ होगा इसके लिए मॉडरेट है। मतलब इतना कैलकुलेशन को कर पाना और मेन ना जानते हो कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम था। ये अगर किसी ने कॉम्प्रिहेंड कर लिया होता, तो ये सेट सबसे ईज़ी सेट बन सकता था। इसमें बस खाली डेटा को उठा-उठा के कैलकुलेट करना था। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।